वालेकुम अस्बे साबिक। आज हम साइंस के एक नए सबक के साथ मौजूद हैं। आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रिक डिवाइसेस या बिजली के जो आलात होते हैं, जैसे बल्ब है, पंखा है, इनकी वर्किंग पर क्या क्या जो फैक्टर्स हैं वो असरअंदाज होते हैं, उन पे आज हम बात करेंगे। तो आइए आगाज करते हैं। तालीम मंजिल यूट्यूब चैनल। तालीम मंजिल यूट्यूब चैनल एक तालीमी चैनल है जिसका मकसद तालीम, तालीम और सिर्फ तालीम है। हम आज के इस लेसन में 4 पैरामीटर्स, 4 लीवर्स या पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे जो एक सिंपल सर्किट में लगे डिवाइस की परफॉर्मेंस पर असर करते हैं, और हम देखेंगे कि हम किसी भी डिवाइस की परफॉर्मेंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और वो 4 पैरामीटर या 4 लीवर जो है, उसमें सबसे पहले वोल्टेज है, उसके बाद करंट है, यानी करंट जो है कम या ज़्यादा करने से, और तीसरी चीज़ जो है वो पावर यूज़र, यानी वोल्टेज जो है, जो डिवाइसेस हैं उनकी पावर के कम या ज़्यादा करने से डिवाइसेस की परफॉर्मेंस पे, या बल्ब अगर हमने लिया तो उसकी ब्राइटनेस पर क्या असर पड़ेगा। और फिर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे कि रुकावट ज़्यादा करने से, रेजिस्टेंस ज़्यादा करने से या कम करने से इसकी परफॉर्मेंस पे, जो डिवाइसेस हैं उनकी परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो 4 चीज़ों पे हम बात करेंगे आज। एक तो सोर्स की हम बात करेंगे कि वोल्टेज बढ़ाने या कम करने से क्या होगा। फिर हम बात करेंगे कि अगर रेजिस्टेंस जो है कम या ज़्यादा कर दें, यानी तारें लंबी कर दें या छोटी कर दें, या तारें मोटी कर दें या बारीक कर दें, फिर क्या होगा। और अगर नंबर ऑफ़ डिवाइसेस कम कर दें या ज़्यादा कर दें तो फिर परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ेगा। तो आज के इस सबक में हम बुनियादी सर्किट की जो बुनियादी चीज़ें जो इस पे असर करती हैं, पैरामीटर्स हैं, उन पे बात करेंगे। All right, let's be honest. Have you ever put together a simple circuit, stepped back, and thought, man, I wish that light was just a little brighter? Or maybe I need that motor to spin just a bit faster? Well, you're definitely not alone. And guess what? It's not as complicated as you might think. We're going to break down exactly how you can take control of the power in your projects. So let's dive right in. So, what are we really talking about here? It's all about that moment, right? You want to push your project from working to awesome. You want to see that LED go from a sad little glow to a super bright beam. Or maybe you need a tiny motor to have just a little more kick, a bit more oomph. The big question is, how do you actually do that? Okay, here's the secret. I want you to start thinking about your circuit like it's a control panel. Seriously, it's got these main levers you can pull, dials you can turn, and sliders you can adjust. And once you know what they do, you can get the exact performance you're looking for. And today, we're going to get you comfortable with every single one of them. All right, let's get to our first control. This is the big one, the main power switch. Let's call it the voltage lever. So, what is voltage? The easiest way to think about it is as electrical pressure. You know, it's the force that's actually pushing the electricity through your circuit. And for most of the stuff we build, that push comes from a pretty simple source: batteries. And the cool thing here is it's super direct. Every battery you add gives you more voltage, more of that electrical push. So the more batteries you have, the more pressure you're putting on the system. And that extra pressure, it shoves more electricity right through the bulb, making it shine way, way brighter. This is pretty much the most straightforward way to crank up the power. But hold on, there's a really, really important warning that comes with this. You can't just keep adding batteries forever. Every single component, whether it's a tiny LED or a small motor, has a maximum voltage it can take. If you push it past that limit, well, poof, it's going to burn out. So please, always check the specs on your parts before you go wild with the batteries. So let's lock in our first rule for the toolkit. It's super simple. More batteries equals more power. That's it. Just, be gentle and respect their limits. Okay, on to the next control on our panel, the load lever. Now, load is just a fancy word for anything that's using power in your circuit. The bulb, the motor, that little buzzer, that's the load.
So the question is, what happens when you start adding more of these things? So let's imagine you keep your power source the same. We've still got our one battery. But now you start adding more bulbs to that same circuit. What you're really doing is forcing that one battery to split its energy. The pizza analogy is perfect here. If it's just you, you get the whole pizza. But if three friends show up, everybody gets a smaller slice, right? It's the exact same thing in your circuit. Each bulb gets less power, so they all end up looking a lot dimmer. And boom, that's our second rule. It's a big one. More devices means less power for each one. Simple as that. Now, let's talk about a control that a lot of people totally forget about, the path itself. Yeah, the wires. We're going to call this the distance dial, and it's all about how long your wires are. Okay, think about water flowing through a garden hose. There's always a little bit of friction inside, right? Well, it's the same for electricity in a wire. That friction is called resistance, and it makes the electricity lose a little bit of energy as it travels. So the longer your wire is, the more friction, the more resistance, and the more power gets lost along the way. And by the time the power gets to your bulb, there's less of it, which means, you guessed it, a dimmer bulb. So here's our third rule, and it's a game changer for keeping things efficient. A shorter path means stronger power. Keep those wires as short and direct as you can. And now for our final control on the panel. We're going to call this one the flow slider. We're still talking about the wire here, but this time it's not about how long it is, but how thick it is, what people in the know call its gauge. Let's use another analogy. Think of your wire as a highway, and the electricity is all the cars. This flow of cars, or electricity, is called current. Now, a really thin wire, that's like a tiny single-lane country road. You're going to get a traffic jam, right? Not much current can get through. But a nice, thick wire, that's a 6-lane superhighway. It lets a ton of current flow through super easily, delivering way more power to your bulb and making it shine nice and bright. And that gives us our fourth and final rule. A thicker path is an easier path for power. So if you need more juice, give it a bigger road to travel on. Use a thicker wire. Okay, there we have it, our 4 fundamental controls. The voltage lever, the load lever, the distance dial, and the flow slider. Now, let's pull this all together onto one master control panel. This is going to be your ultimate cheat sheet. Seriously, this is it. This is your guide. You want to crank up the power? Simple. Add more batteries, use fewer devices on the circuit, keep your wires short, and use thicker wire. And what if you need to tone it down? Just do the exact opposite. Use fewer batteries, add more stuff to split the power, or use longer or thinner wires to add a little more resistance. See, you are now in complete control of your circuit's power. And that's the whole shebang. Those are the 4 key controls on your circuit's control panel: the number of batteries, the number of devices, the wire length, and the wire thickness. You've officially got the toolkit now. You can go beyond just building circuits and start designing them with real intention. So now that you know the rules, the only real question left is, what are you going to build first? आइए हम इसको समझने के लिए वर्चुअल लैब की सैर करते हैं और उसकी मिसाल लेते हैं। हमारे पास एक बल्ब है, हमारे पास बैटरी है यानी सोर्स है, उसके बाद वायर्स हैं, तारें हैं। अब ये चीज़ें सोर्स ऑफ एनर्जी या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये डिवाइस है जिसे हम यूज़ करेंगे, और वायर्स इनको हम इस्तेमाल करेंगे और हम मुख्तलिफ सर्किट बनाएंगे और देखेंगे कि क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या सोर्स के बढ़ाने से या कम करने से इसकी ब्राइटनेस पे फ़र्क पड़ेगा? क्या तारें लंबी या छोटी करने से कोई फ़र्क पड़ेगा? या क्या तारों की मोटाई जो है वो कम और ज़्यादा कर दें तो क्या उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? तो हम इसको इस तरीके से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, एवरी गुड एक्सपेरिमेंट नीड्स अ बेस लाइन। जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके लिए एक बेस लाइन होनी चाहिए, एक बुनियाद होनी चाहिए। और हमारी जो बेस लाइन है, हमारी जो बुनियाद है, वो क्या है कि इसमें हम एक सिंपल क्लोज सर्किट लेते हैं। क्लोज सर्किट हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि वो सर्किट जिसमें से बिजली गुजर रही हो, करंट गुजर रहा हो और डिवाइस काम कर रहा हो, उसे क्लोज सर्किट कहते हैं, यानी स्विच ऑन हो। तो एक क्लोज सर्किट लेते हैं, यानी उसमें से सोर्स उसमें मौजूद है, उसमें डिवाइस भी मौजूद है और उसमें से करंट फ्लो कर रहा है। तो अब इसमें एक बैटरी लगी हुई है, 1 बैटरी। एक
यानी इसकी जो वोल्टेज है या पावर है वो 1 बैटरी है, एक बैटरी है, ठीक है। और एक जो है वो डिवाइस लगा हुआ है, यानी एक बल्ब लगा हुआ है, और इसी तरह ये वायर्स लगी हुई हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। स्विच के बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्विच तो सिर्फ कंट्रोलर है ना, वो स्विच एक ही होता है, और उससे वो छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है किससे? सोर्स से यानी बैटरी से, और उसके बाद नंबर ऑफ बल्ब या नंबर ऑफ डिवाइसेस। बल्ब की जगह हम कोई और भी चीज़ ले सकते हैं, मोटर ले सकते हैं या कोई और चीज़, पंखा है, कोई चीज़ भी है जो भी बिजली को इस्तेमाल करेगी, जो चीज़ वो डिवाइस हम उसे लेते हैं। या हम समझने के लिए बल्ब को मिसाल के तौर पे लेते हैं। तो आप देखें कि क्या होता है। एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, क्या है, व्हाट इफ वी ऐड मोर पावर। अगर हम पावर को ज़्यादा कर दें, अगर हम सोर्स को ज़्यादा कर दें, अगर हम बैटरीज को ज़्यादा कर दें, फिर क्या होगा? द पावर सोर्स ऑफ अ सर्किट इज बैटरी विच प्रोवाइड्स अ पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी क्या करती है? पोटेंशियल डिफरेंस हमें मुहैया करती है। पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, वो बैटरी जितनी ज़्यादा हम लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहते हैं। हमारे घरों में जो वोल्टेज होता है वो 220 वोल्ट होता है। तो ये जो आमतौर पर सेल होता है वो 1.5 वोल्ट का होता है। जो बैटरी होती है वो 9 वोल्ट की भी होती है, 6 वोल्ट की भी होती है, और 12 वोल्ट की भी होती है। तो जब हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो हम देखते हैं कि क्या होता है। ये जो हमने सिंपल एग्जांपल ली थी, इसमें एक सेल लगा हुआ है, यानी पावर सोर्स जो है 1 है। सपोज कि ये 1.5 वोल्ट है ये सेल, और इसमें बल्ब जो जल रहा है वो जल रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको सोर्स को बढ़ा देते हैं, एक बैटरी के बजाय 2 बैटरीज लगा देते हैं, वोल्टेज को हमने डबल कर दिया। ठीक, जब वोल्टेज हम डबल करेंगे तो क्या होगा, ये जो बल्ब है उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगी, यानी वोल्टेज के बढ़ाने से ब्राइटनेस में इजाफा हो जाएगा, लाइट ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो पहली चीज़ हमने देखा कि वोल्टेज का क्या असर होता है। जब वोल्टेज हम बढ़ा देते हैं तो जो डिवाइस है वो ज़्यादा बेहतर काम करना शुरू कर देता है। उस बल्ब अगर है तो उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगी, पंखा है तो वो तेज़ हो जाएगा, मोटर है तो वो तेज़ चलना शुरू हो जाएगी। तो पहला जो फैक्टर है या पहला जो पैरामीटर है वो बैटरीज है, वोल्टेज है। जब हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं तो डिवाइस की फंक्शनिंग में बेहतरी आ जाती है, और जब हम बैटरी को कम करते हैं, वोल्टेज को कम करते हैं, तो ब्राइटनेस में कमी आ जाती है। मोर बैटरीज, मोर वोल्टेज, ब्राइटनेस, ब्राइटर डिवाइसेस। बैटरीज को ज़्यादा करेंगे, वोल्टेज बढ़ जाएगी, तो डिवाइस जो है वो बल्ब ज़्यादा ब्राइटर होगा। अगर मोटर है तो वो ज़्यादा तेज़ी से चलना शुरू हो जाएगी। द रिजल्ट इज क्लियर, द बल्ब इज सिग्निफिकेंटली ब्राइटर। जब हमने डबल कर दिया बैटरीज को तो बल्ब ब्राइटर हो गया। द increase voltage pushes more current through the circuit, increasing the performance of the device। जब हम डिवाइसेस को ज़्यादा, जब हम सोर्सेज को ज़्यादा कर देते हैं, उससे वोल्टेज में इजाफा हो जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से करंट ज़्यादा बहता है, और करंट ज़्यादा बहने की वजह से वो बल्ब या मोटर जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करती है। यानी बिफोर, जब हमने पहले एक बैटरी लगाई थी, ठीक, तो आप देखें इसकी ब्राइटनेस, और अब हमने बैटरीज को डबल कर दिया, वोल्टेज को डबल कर दिया, तो अब ब्राइटनेस में इजाफा हो गया। तो उसूल क्या बना, द नंबर ऑफ बैटरीज आर सेल्स इंक्रीजेस द वोल्टेज इंक्रीजेस। जब हम बैटरीज की तादाद को बढ़ा देते हैं, वोल्टेज बढ़ जाती है। बैटरीज को बढ़ाएंगे तो बल्ब यानी जो वोल्टेज है उसमें इजाफा हो जाएगा, और वोल्टेज जब इंक्रीज करेगी तो ब्राइटनेस में भी इजाफा हो जाएगा। as the number of batteries or cells increase, the voltage increases, and the brightness of the bulb or speed of the motor increases। तो वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ जाता है, और करंट के बढ़ने से ब्राइटनेस, बल्ब है तो उसकी ज़्यादा हो जाएगी। अगर वो
फैन है तो वो ज़्यादा तेज़ी से घूमना शुरू हो जाएगा, मोटर है तो वो ज़्यादा तेज़ी से स्पिन करेगी। तो पहला जो पैरामीटर है या पहला जो फैक्टर है जो असर करता है सर्किट के ऊपर वो है सोर्स, वोल्टेज। वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो डिवाइस ज़्यादा बेहतर काम करना शुरू कर देगा। लेकिन एक ख्याल रखना है हमने कि वोल्टेज की एक हद होती है, अगर हम उस हद से को क्रॉस कर जाएंगे तो क्या होगा, वो डिवाइस जो है वो जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, काम करना छोड़ देगा। जैसे लैपटॉप है तो उसमें आप देखें तो उसमें एक ख़ास अडाप्टर साथ लगा होता है, यानी उसको वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। इसी तरह बल्ब जो है उसको अगर 220 वोल्ट है तो 220 वोल्ट से हम 440 वोल्ट अगर उसको दे देंगे तो बल्ब तो जल जाएगा। इसी तरह फ्रिज है, टीवी है, तो वोल्टेज बढ़ाने की एक ख़ास हद है। अगर हम उस हद को क्रॉस कर लेंगे तो बजाय फ़ायदे के उल्टा नुकसान होगा, करंट बहुत ज़्यादा बहेगा और वो ज़्यादा करंट बहने की वजह से वो डिवाइस हमारा जल जाएगा। मोर पावर इज़ नॉट ऑलवेज बेटर। Every electric device, from a tiny bulb to a complex motor, has a maximum voltage limit. हर चीज़ की एक मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज की लिमिट होती है। अगर वो लिमिट हम क्रॉस करेंगे तो वो डिवाइस जो है वो जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। If you cross that limit by adding too many batteries, the device will be permanently damaged or destroyed. तो वो डिवाइस जो है वो ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बल्ब है तो फ्यूज़ हो जाएगा, ट्यूब लाइट है तो वो जल जाएगी, आइंदा काम नहीं करेगी। तो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हमें एहतियात करनी है कि हम उस वोल्टेज उसके ऊपर है, डिवाइस के ऊपर लिखा होता है कि मैक्सिमम वोल्टेज ये कितनी ये डिवाइस जो है वो ले सकता है। अगर हम उसे बढ़ा देंगे तो वो काम नहीं करेगा, वो ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जल जाएगा। अब अगला एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। अगर पावर वही रही है, व्हाट हैपन्स व्हेन वी पावर मोर डिवाइसेस, अगर हम डिवाइसेस ज़्यादा लगा दें फिर क्या होगा। एक बल्ब के बजाय दो बल्ब लगा दें, तीन लगा दें, एक पंखे के बजाय दो तीन चार पांच लगा दें, यानी डिवाइसेस को की तादाद को बढ़ा देंगे तो फिर क्या होगा। ये एक बल्ब लगा हुआ है, कंट्रोल जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, और अब आप देखें कि इसमें हमने बल्ब ज़्यादा कर दिए। टेस्ट हमने इसका जब टेस्ट होगा इसमें दो बल्ब हमने लगा दिए, तो दो बल्ब लगाने से क्या हुआ कि ये सीरीज में लगाए हैं, दो बल्ब हमने लगा दिए, दो पंखे लगा दिए हैं, दो मोटरें लगा दी हैं। तो जब डिवाइसेस ज़्यादा करेंगे तो इसका मतलब है लोड ज़्यादा हो जाएगा। जब लोड ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा कि आप देखें कि यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ था, वोल्टेज उतनी ही है, ठीक। एक तो ये जो बल्ब है ब्राइटर है, ज़्यादा तेज़ रोशनी दे रहा है, लेकिन जब हमने वोल्टेज उतनी रखी है लेकिन बल्ब दो लगा दिए तो अब देखें कि ये डीम हो गए। तो क्या होगा, बल्ब या डिवाइसेस की तादाद को बढ़ाने से वो डिम हो जाएगी, लाइट जो है वो डिम हो जाएगी और जो परफॉर्मेंस ऑफ डिवाइस है वो कम हो जाएगी, सीरीज में अगर हम लगाएंगे तो, ठीक है। तो हर चीज़ जो है उसकी एक एक हद है ना। एक बल्ब ज़्यादा रोशनी देगा, वो ज़्यादा ब्राइटर होगा, और दो बल्ब जो है उनकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, वो डिम लाइट देंगे। तो उसूल क्या बना कि when the number of devices increases without increasing the voltage, the bulb will become dimmer, the speed of the motor will decrease and the working of the device will be affected। यानी जब हम पावर वही रखेंगे, वोल्टेज वही रखेंगे, लेकिन डिवाइसेस की तादाद बढ़ा देंगे तो हमारा जो सर्किट है उसके ऊपर लोड ज़्यादा पड़ेगा, सोर्स के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ेगा, और वो डिवाइसेस जो हैं वो उनके काम करने की जो रफ्तार है या उनकी एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। हम सीरीज सर्किट की बात करते हैं। पैरेलल सर्किट में तो वोल्टेज जो है वो हर एक को अलग अलग मिल रही होती है, लेकिन वो भी एक हद है। अगर हम बहुत ज़्यादा किसी सर्किट के अंदर ज़्यादा लोड डाल देंगे तो वो चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगी। नेक्स्ट जो है वो हमारा जो पैरामीटर है वो है तारों की मोटाई। कि तार जो है हमारे पास है, अब आप जब हम जो तारें इस्तेमाल कर रहे होते हैं अगर वो
ये मोटी तार है यहाँ पे, तो करंट फ्लो यहाँ ज़्यादा है, और यहाँ ये तार बारीक है, तो यहाँ करंट फ्लो कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो जितनी तार जो है वो बारीक होगी, रेजिस्टेंस उसकी बढ़ जाएगी। तो रेजिस्टेंस जब बढ़ जाएगी तो फ्लो ऑफ जो चार्जेस है, करंट है, वो उस पर असर होगा। रेजिस्टेंस क्या होती है? रुकावट होती है। तार है या जैसे पानी का पाइप है, तो उसके अंदर से पानी जब गुजरता है तो मोटा पाइप लेते हैं तो उसमें से ज़्यादा पानी गुजर जाता है, और अगर पाइप बारीक लें तो उसके अंदर से पानी कम जो है ना वो बह सकेगा। तो अब हम इसको रेजिस्टेंस की वही मिसाल, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि हालवे है, यानी एक हालवे से मुराद है एक रास्ता है। उस रास्ते में से लोग गुजर रहे हैं, जब वो रास्ता क्या होगा, खुला होगा, तो लोग आसानी से गुजर जाते हैं। इसी तरह तार जब मोटी होगी तो उसमें से करंट आसानी से बहेगा, तो तार गर्म नहीं होगी। लेकिन अगर रास्ता तंग है, ठीक है, रास्ता जो है वो तंग है, तो उतने ही लोग जब उसमें से गुजरेंगे तो बहुत मुश्किल होगी, और बहुत मुश्किल से वो गुजरेंगे, और काफ़ी उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है तार जो है जब बारीक होती है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, और जब तार मोटी होती है तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो मोटी तार में से, चूंकि उसकी रेजिस्टेंस यानी रुकावट, रेजिस्टेंस रुकावट को कहते हैं, यानी मोटी तार में रेजिस्टेंस कम होगी, रुकावट कम होगी, तो उसमें से करंट ज़्यादा आसानी से गुजरेगा। और बारीक तार जो है उसके अंदर से रेजिस्टेंस उसकी ज़्यादा होगी, उसके अंदर से करंट मुश्किल से गुजरेगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। तो तार की मोटाई का भी असर होता है कि मोटी तारें जो हैं वो ज़्यादा बेहतर कंडक्टर होती हैं, और बारीक तारें जो हैं वो बेहतर कंडक्टर नहीं होती। वो अगर बहुत बारीक तार हम इस्तेमाल करेंगे तो वो उसकी वजह से एक वक्त आएगा कि वो जल जाएगी। तो इसलिए हमें एक मुनासिब मोटाई की जो तारें हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए, बहुत बारीक तारें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अब हम तीसरी चीज़ को देखते हैं कि वो है तारों की लंबाई। वो जो वायर्स हैं उनकी लंबाई क्या, उसका भी कोई असर पड़ता है। यानी ये हमारे पास एक सर्किट है और इसमें ये तारें हैं, छोटी तारें लगी हुई हैं, और ये सर्किट है हमारे पास, इसमें बहुत मोटी तार यानी बहुत लंबी तार लगी हुई है। मोटाई दोनों की बराबर है, लेकिन ये छोटी है और ये बहुत लंबी तार है। तो इसके अंदर क्या इसमें फ़र्क पड़ेगा? तो अब चूंकि वायर जो हैं वो रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, ठीक, तो बारीक अगर तार कम लंबी होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी, कम रुकावट पैदा होगी। और अगर तार बहुत ज़्यादा लंबी होगी, लॉन्गर जो है वो वायर होगी, तो वो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, और इस तरह बल्ब की ब्राइटनेस आप देखें कम हो गई है। यहाँ तारें, सोर्स उतना ही है, ये भी सोर्स यानी सोर्स ऑफ एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सेम है। फ़र्क किस पे पड़ा? तारों की लंबाई पे। जब तारें छोटी होंगी, डिवाइस करीब होगा सोर्स के, तो वो ज़्यादा बेहतर काम करेगा, और जब तारें बहुत लंबी होंगी और डिवाइस जो है वो सोर्स से ज़्यादा दूर होगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, और इस तरह ये जो डिवाइस है वो डिम हो जाएगा। बल्ब अगर है वो डिमर हो जाएगा, और अगर मोटर है तो वो स्लो हो जाएगी, और डिवाइस जो है वो अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, तारें गर्म हो जाएंगी। तो उसूल क्या बना? एज वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर, द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब्स, द स्पीड ऑफ द मोटर एंड द वर्किंग ऑफ द डिवाइस विल डिक्रीज। और लंबी करने से परफॉर्मेंस डिवाइस की कम हो जाएगी। फिर थिकनेस की हमने पहले बात की है। थिकनेस में क्या होगा, पहले भी हम बात कर चुके हैं कि अगर ये हमारे पास एक सर्किट है, इसमें देखें कि तार जो है वो मोटी तारें लगी हुई, इस सर्किट में तार जो है बारीक लगी हुई है। तो इसमें क्या हुआ कि मोटी तार लगी हुई है तो उसमें ब्राइटनेस ज़्यादा है, और बारीक तार लगी हुई है तो उसमें ब्राइटनेस कम हो गई है, यानी परफॉर्मेंस जो है डिवाइस की कम हो गई है। बल्ब की हम मिसाल ले रहे हैं, मोटर के साथ भी ऐसे ही होगा, पंखे के साथ भी ऐसे ही होगा, ट्यूबलाइट के साथ ऐसे होगा, इसी तरह टीवी या दूसरा कंप्यूटर है उनके साथ भी यही होगा।
तो तारें जो हैं वो अगर मोटी होंगी तो रेजिस्टेंस चूँकि कम उसमें लगता है, इस वजह से वो जो परफॉर्मेंस बल्ब की होगी वो बेहतर होगी, अच्छी होगी, वो ज़्यादा ब्राइट होगा। और अगर तारें बारीक होंगी, पतली होंगी, पहले भी हमने बात किया, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और इसमें जो बल्ब है वो डिमर हो जाएगा और जो मोटर अगर है तो वो स्लोअर हो जाएगी और इसी तरह पंखा है तो वो भी स्लो डाउन हो जाएगा। तो उसूल क्या बना? एज वी डिक्रीज द थिकनेस ऑफ द वायर द बल्ब विल बिकम डिमर, थिक वायर कंडक्ट मोर करंट देन थिन वायर। मोटी तारें जो है वो ज़्यादा करंट को कंडक्ट करती है, उनमें से करंट ज़्यादा बेहतर बहता है और बारीक तारों में से करंट जो है वो मुश्किल से बहता है। इसलिए ये हमने देखना है कि बहुत ज़्यादा बारीक तारें जो है इस्तेमाल नहीं करनी। तो हमने 4 चीज़ों के बारे में बात की है कि जिसमें हमारा जो सर्किट है उसकी परफॉर्मेंस पे, हमारी डिवाइस है उसकी परफॉर्मेंस पे क्या है, 4 चीज़ें असर करती हैं। पहली चीज़ क्या है कि वोल्टेज है। जब आप वोल्टेज बढ़ा देते हैं तो परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। ठीक, जो वोल्टेज बढ़ाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का फ़र्क ज़्यादा हो जाता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस का फ़र्क ज़्यादा हो जाता है तो वो जो डिवाइस है वो बेहतर काम करता है। और इसमें हमने कहा था कि एहतियात ये करनी है कि वोल्टेज एक ख़ास हद से बढ़ ना जाए। अगर उस ख़ास जो उसकी लिमिट है उसे बढ़ा देंगे तो वो तो उल्टा हमारा जो डिवाइस है वो जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो पहली चीज़ है वोल्टेज। वोल्टेज बढ़ाने से ब्राइटनेस या परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। दूसरी चीज़ है वायर की लेंथ, तार की लंबाई। ये उलट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तार छोटी होगी तो परफॉर्मेंस बेहतर होगी, तार छोटी होगी तो परफॉर्मेंस बेहतर होगी, तार अगर लंबी होगी तो परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। इसलिए बहुत दूर जब तारें लंबी तारें होती हैं और उनके बहुत दूर जाके हम कोई डिवाइस लगाते हैं तो वो इतना अच्छा काम नहीं करता। तीसरी चीज़ है लोड, यानी अगर आप लोड ज़्यादा कर देते हैं, बल्ब ज़्यादा कर देते हैं, मोटर आप उसकी जो एनर्जी यूजेज है वो ज़्यादा कर देते हैं, 1 हॉर्स पावर की मोटर लगाते हैं, 2 की लगा देते हैं, तो जो जो इसकी लोड ज़्यादा होता जाएगा परफॉर्मेंस जो है वो कम होती जाएगी। उसकी सोर्स अगर हमने नहीं बढ़ाया, उसकी वोल्टेज नहीं बढ़ाई और ये हम बढ़ाते जा रहे हैं, लोड बढ़ाते जा रहे हैं, बल्ब ज़्यादा करते जा रहे हैं, मोटर जो है उसकी पावर ज़्यादा करते जा रहे हैं, तो क्या होगा, परफॉर्मेंस जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। तो लोड के बढ़ने से सर्किट की परफॉर्मेंस कम होती जाती है। चौथी चीज़ जो है जिस पे हमने बात किया वो है थिकनेस ऑफ वायर। थिकनेस का मतलब होता है मोटाई, तार की मोटाई। जितनी तार की मोटाई ज़्यादा होगी उतना ही वो सर्किट बेहतर काम करेगा, डिवाइस बेहतर काम करेगा। क्योंकि तारें वोल्टेज को कंडक्ट करती हैं तो वो मोटी तारों में से करंट ज़्यादा अच्छी तरह गुजर सकता है। जैसे कि हमने मिसाल ली है कि खुला अगर रास्ता होगा तो वहाँ रश ज़्यादा नहीं पड़ेगा और लोग आसानी से वहाँ से गुजर जाएंगे। लेकिन अगर तंग रास्ता है तो लोग बड़ी मुश्किल से वहाँ से गुजरेंगे और काफ़ी रुकावट का उन्हें सामना करना पड़ेगा। सड़क अगर तंग है तो वहाँ ट्रैफिक का रश ज़्यादा होगा और वहाँ मुश्किल से जो है वो गाड़ियाँ गुजरेंगी, और अगर सड़क खुली होगी तो वहाँ से गाड़ियाँ आराम से और ज़्यादा बेहतर तरीके से गुजर सकती हैं। तो आज हमने 4 चीज़ों की बात की है। 4 चीज़ें जो हैं किसी भी वोल्टेज, किसी भी सर्किट के परफॉर्मेंस पे या किसी भी डिवाइस की परफॉर्मेंस पे असर करती है। नंबर 1 वोल्टेज है, वोल्टेज बढ़ाने से परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। दूसरी है लेंथ, वायर की लेंथ है, वायर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी परफॉर्मेंस उतनी कम हो जाएगी। और तीसरी चीज़ लोड है, लोड बढ़ाने से क्या होगा, परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाएगी। और चौथी चीज़ जो है वो है थिकनेस ऑफ द वायर, वो जो तारें हमने लगाई हैं वो अगर मोटी होंगी तो वो परफॉर्मेंस बेहतर होगी, लेकिन इसकी मोटाई की भी एक ख़ास हद है। यहाँ पे भी लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए कि हम कोई बहुत मोटी तार जो है लगा दें। तो बारीक तार होगी तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाएगी, चूँकि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। आज का लेसन जो था हमारा वो उन पैरामीटर के बारे में था कि जिनके बदलने से, जिनको कम या ज़्यादा करने से, जिनको कंट्रोल करने से सर्किट की या डिवाइस की परफॉर्मेंस पर असर होता है।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगली क्लासेस में हम ज़्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जो ज़्यादा डिटेल से हमें बताता है कि किस तरह जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें इस पे असर करती हैं सर्किट की परफॉर्मेंस पे। तो ये सबक जो है वो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, दिलचस्प लगा होगा और आपको समझ भी आ गई होगी। कोशिश ये की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीके से आपको समझाया जाए। आपको पहले एक वीडियो जो है इंग्लिश में दिखाई जाती है, उसको उसको अच्छी तरह सुने, बार बार सुने बल्कि, और उससे आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी। आपको पहली दफ़ा तो शायद इतना अच्छा समझ ना आए, लेकिन जब दूसरी तीसरी दफ़ा जब आप सुनेंगे तो आपको चीज़ें जो हैं वो बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी। फिर कुछ हम आगे चल के कुछ प्रैक्टिकल भी करेंगे कि बाकायदा हम इन चीज़ों को करके भी आपको दिखाएं। और ये हमारे घरों में, हमारे स्कूलों में, हमारे ऑफिस में, हर जगह पे यही उसूल जो हैं इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ये अमली चीज़ें हैं, हमें ज़रूर सीखनी चाहिए। और इन्हीं पे बड़े बड़े जो आगे कॉम्प्लिकेटेड डिवाइसेस हैं, जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये जितने हैं वो सारे इन सर्किट्स पे ही काम कर रहे होते हैं। तो अगर हमें सर्किट्स की समझ आ जाए तो हमें उन सब की, बाकी चीज़ों की जो वर्किंग है उसकी भी समझ आ जाएगी। अगले सबक तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।